So hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. I thought of doing this video for so long, but I wasn't sure about it, like if it's the right time or not. But the boards exams and other exams are just around the corner, so I thought कि चलो video बना ही लेते हैं. So I'm discussing with you about my personal uh, some tips and tricks, or you can say methods. Like मैं पिछले 3 या 4 साल से ये methods try कर रही हूँ and the results are quite good. And the first disclaimer I just want to give you that you have to be loyal to yourself. आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ये मेथड्स ट्राई कर रहे हो, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, this is not gonna happen. The result will be not very good then. So yeah, I'm going to discussing with you my personal few tips, tricks or method, whatever you can call it. And I named the video for only board exams, but this is not for only board exams. This is for all the students out there who are going to sit for exams, board exams or any type of exams, so they can also try these methods. So yeah, subscribe to my channel. So for them who don't know me, I am also a board exam candidate. मैं अब इस साल 12th दे रही हूँ. So I know the situation very well. मैं समझ सकती हूँ and what is going on. And आप जो feel कर रहे हैं, मैं भी वो same चीज़ feel कर सकती हूँ. So I'm here for you to share my personal methods, जो कि मैंने 3-4 साल से फॉलो कर रही हूँ. एंड it will help you, I think, to kill the boredom and add some spice to your study. So yeah, without any further ado, let's get started. So the first method is maintain a routine chart for your entire day. So you can make a chart for your entire day कि आप कौन से टाइम से कौन से टाइम तक पढ़ाई करेंगे, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक खेलेंगे. सो ऐसे करके अगर आप एक एंटायर डे का चार्ट आप बना लो, तो यू कैन ईजीली सी एट द एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ कि आप पढ़ाई में कितना टाइम दे रहे हो एंड कौन से सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो. सो yeah, this is very like a routine life. You can lead a very routine life, and yeah, it's definitely works. So try this. So method number 2 is give some extra attention to your weak subjects or chapters. So आपका जो weak chapters है या subjects है, तो complete them first. Like आप extra attention दो उन पे, ज़्यादा टाइम दो उन पे. So ताकि आपका जो weakness है वो आपका strongness बन सके. So आप ऐसे करके अपना जो weak chapters है या subjects है उनको आप थोड़ा थोड़ा करके अपना strong point बना सकते हो. So yeah, it definitely works and you should try this. So the method number 3 is group study by doing gameplay. So you can create a group with your friends and you can do study. So group study is very good. I'm currently doing a group study. So but what is gameplay? So gameplay is let me give you an example to make it clear. Suppose you have a group with 3 members. So A, B, C.
3 मेंबर के साथ आपका एक ग्रुप है। सो एक टॉपिक के ऊपर ए क्वेश्चन सेट करेगा, बी क्वेश्चन सेट करेगा एंड सी क्वेश्चन सेट करेगा, एंड वही क्वेश्चंस को आप अपने अंदर लाइक ए बी को पूछेगा, सी को पूछेगा, बी ए एंड सी को पूछेगा, सी ए एंड बी को पूछेगा। सो ऐसे करके हु कैन आंसर देम प्रॉपरली, आंसर अ क्वेश्चन प्रॉपरली, सो उनको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड हु डोंट तो उसको 0 मार्क्स। सो एट द एंड ऑफ द क्लास और सेशन यू कैन सी लाइक हु इज़ डूइंग बेटर, एंड ऐसे करके आप लोगों लाइक आपके ग्रुप में एक कंपटीशन बन सकता है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पढ़ाई में कंपटीशन लाइक बहुत ही अच्छा चीज़ है। सो ऐसे करके आप अपने ग्रुप के अंदर ही compete कर सकते हैं एक दूसरे से। सो या यू शुड ट्राई दिस एंड इट डेफिनेटली वर्क्स, अगर आप लाइक बहुत ही सीरियसनेस के साथ कर सकते हैं तो। सो द मेथड नंबर 4 इज़ ऑल्सो ग्रुप स्टडी, बट यू कैन ऐड समथिंग मोर लाइक स्मॉल एग्जाम्स। सो वैसे ही यू कैन क्रिएट अ ग्रुप out of your friends and study in a group, but you can also do small exams like आपके ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं एंड एक टॉपिक के ऊपर आप 10 मार्क्स का एक एग्ज़ाम रखना चाहते हैं, तो ए 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन शीट बनाएगा, बी भी बनाएगा एंड सी भी बनाएगा, एंड उस क्वेश्चंस को आप अपने अंदर स्वैप कर सकते हो, लाइक ए बी का क्वेश्चन लेगा, सी ए का क्वेश्चन लेगा, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस स्वैप करके सीरियसली उसका आंसर आप दे सकते हो। सो लाइक वी नो, द स्टूडेंट्स नो दैट बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले छोटा छोटा एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो ऐसे करके आप अपने अंदर छोटे छोटे एग्ज़ाम करके आप अपने खुद को बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। सो या इट इज़ ऑल्सो अ गुड टेक्निक। मैं ये करती थी अपने 10th के बोर्ड से पहले एंड अभी भी मैं कर रही हूँ। सो या इट रियली वर्क्स, रियली। सो द 5th मेथड इज़ मेंटेन अ चार्ट फॉर रिविजन। सो ये क्या है, आप सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने छोटू सा एक चार्ट बना के रख दिया है। सपोज मैं इंग्लिश का रिवीजन कर रही हूँ। सो इंग्लिश पे 3 चैप्टर्स हैं, तो मैंने ऐसे करके एक चार्ट बना लिया है, एंड मैं जब चैप्टर 1 पे लाइक चैप्टर नंबर 1 मैं जब रिवीजन कंप्लीट करूँगी तो इस में एक टिक दे दूँगी। सो ऐसे करके मैं जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट करूँगी तो उस रिवीजन बॉक्स में एक टिक देती जाऊँगी, एंड जितनी बार मैं रिवीजन करूँगी उतने बार लाइक सपोज मैंने चैप्टर 1 2 बार रिवीजन किया है, सो आई एम गिविंग 2 टिक्स इन द बॉक्स, एंड मैं चैप्टर 2 एक बार ही रिवीजन किया है, चैप्टर 3 मैंने 3 बार रिवीजन किया है। सो ऐसे करके आप अपने रिवीजन जो है वो आप अपने चार्ट पे एक चार्ट बना के आप अपने सामने रख सकते हो। सो एट द एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ यू कैन सी कि कौन से चैप्टर का रिवीजन ज़्यादा बार हुआ है, कौन से चैप्टर का रिवीजन बिल्कुल ही नहीं हुआ है और कम हुआ है। सो यू कैन लाइक गिव सम एक्स्ट्रा अटेंशन टू दोज चैप्टर्स जिसके रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हुआ और कम हुआ। सो ऐसे करके आपका पढ़ाई जो है वो एक रूटीन वे में आगे बढ़ेगा, एंड सब इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। लाइक वो जो आप अपने एक पेज पे ऐसे करके चार्ट बना के कर सकते हो। सो उस पेज को जब हम
जब आप देखोगे उस पेज को, सो यू कैन क्लियरली सी कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है एंड क्या क्या इनकम्प्लीट है अभी भी. So yeah, it also works, and this is a very 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 good procedure to study. लाइक आप ऐसे करके अपने जो स्टडी का जो बोर्डम है वो किल कर सकते हैं. नए नए प्रोसीड्योर आप ट्राई कर सकते हैं टू एड सम फ्लेवर टू योर स्टडी. सो स्टडी क्यों ऐसे करके हम पढ़ाई करें कि करते जा रहे हैं. एक रूटीन वे में पढ़ाई करें तो जो आपका जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा. जो रूटीन है जिसमें आपको देना है ज़्यादा एनर्जी, उसमें ही आप दे सकोगे. सो दीज आर माई 5 easy peasy tips or methods you can try. Like you should try this. And I just wanna tell you something कि ऐसा कोई एडवाइस आप ना ही लो तो ही अच्छा. कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ऐसे होते हैं कि हाउ टू अचीव 90% मार्क्स विदाउट स्टडिंग. सो ये बहुत ही बकवास चीज़ है. लाइक आप बिना किसी हार्डवर्क के कैसे कुछ अचीव कर सकते हो? कभी भी नहीं होगा. सो ऑलवेज चूज द हार्ड वर्क. आप हार्ड वर्क करोगे तो ही कुछ अचीव होगा. सो हार्ड वर्क करते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. At the same time, I'm giving you some motivational tips, like not motivational tips, how to motivate yourself. So इस लॉकडाउन पे आप बहुत ही जल्दी डीमोटिवेट हो सकते हो क्योंकि आप 1-1.5 साल से कुछ कर रहे हो लगातार, तो आप डीमोटिवेट हो सकते हो. सो बिकॉज द एग्ज़ाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. 2 या 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है. सो अगर आप इस टाइम पे डीमोटिवेट हो जाओ, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर योर स्टडीज़. सो इसलिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप अपने खुद को मोटिवेट रख सकते हो. सो यू कैन डू मेडिटेशन. आई नो मेडिटेशन इज़ अ लेंथी प्रोसेस. यू कांट सी द रिजल्ट्स ओनली 1 or 2 days. सो आप अभी से 15 मिनट्स और 30 मिनट्स अ डे मेडिटेशन कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन रियली सी द डिफरेंस. पढ़ाई के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है. यू कैन आपके दिमाग को, माइंड को बहुत ही काम कर देता है. And meditation is like just a, what to say, is very good thing. So yeah, meditation is very good thing. And मैं भी मेडिटेशन करती थी बट बीच में ब्रेक हो गया था एंड आई एम थिंकिंग कि फिर से चालू करूँ मेडिटेशन. 15 मिनट्स पहले दिन बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो बट टाइम स्पेंड को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो. सो 30 मिनट्स अ डे इज़ एनफ फॉर स्टूडेंट्स और एनीवन. एंड आप इसको अपने लाइक एंटायर लाइफ के लिए भी एक हैबिट बना सकते हो. मेडिटेशन इज़ अ गुड हैबिट ऑल्सो. सो या एंड एक और चीज़, पढ़ाई आप पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकते हो. सो यू कैन ऐड सम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ टू योर लाइक रूटीन चार्ट्स. आप पढ़ाई करने के अलावा भी जो चीज़ आपका जो हॉबी है, जो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, लाइक आई जस्ट लव टू डांस एंड लव टू क्रिएट सम वीडियोज़. सो मैं दिन में 15 या 30 मिनट लाइक 30 मिनट्स टू 1 hour मैं अपने डांस के लिए रखती हूँ. मैं डांस करती हूँ. इससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है
एंड मैं वीक में 1-2 बार शूट कर लेती हूँ, उससे भी मेरा माइंड बहुत ही फ्रेश हो जाता है। सो यू कैन डू इट ऑल्सो। अगर आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, आर्ट अच्छा लगता है, तो आप अपने पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वो चीज़ कर सकते हो। इट विल कीप योर माइंड हेल्दी एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड पढ़ाई का जो बोर्डम है उसको भी किल कर सकता है। सो या दिस इज़ ऑल माई एडवाइस टू यू गाइज। ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर अच्छा रिजल्ट आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't subscribed yet, and you can follow me on Instagram। मैं Instagram पे ज़्यादातर एक्टिव रहती हूँ, एंड बहुत सारे जो YouTube से रिलेटेड कुछ चीज़ है वो मैं Instagram से शेयर करती हूँ। Instagram पे अगर कोई वीडियो मैं करना चाहती हूँ तो Instagram के लोगों से मैं पूछ लेती हूँ, मैं स्टोरी पे डाल देती हूँ। सो yeah, you can follow me on Instagram। I will put the link in the description box। So yeah, बहुत सारा बातें कर लिया है। So yeah, all the best for your upcoming exams, and मुझे भी all the best बोल देना क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। So yeah, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।